نے زوردار گرج بنی، ادھر جو پرندے جانور تھے پانی سب آ گئے، ادھر کو اس نے نظر ماری تو بھیڑیا کے پاس ہی تھا، اس نے ایک ریختہ مارا، وہ 18-20 فٹ کے پاس کے پڑ گرج مار کے جنگل میں پڑا۔ یہ پہچان، یہ میں آپ کو صرف اپنی پہچان کے لیے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے وائس لائے ہیں پوری کائنات میں، سیکنڈ ٹو اللہ، اللہ کے اختیار اقتدار کے ساتھ، جس کو آدمی جیسے پرنسپل ہے، پرنسپل کا سیکنڈ ٹو پرنسپل، میرا جو فلاں پروفیسر وہ سیکنڈ ٹو پرنسپل ہے کہ میں نے اس کو تمام اختیارات دے رکھے ہیں، میں نہ بھی ہوں اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں سیکنڈ ٹو۔ آپ سیکنڈ ٹو ہیں اور اللہ کے لیے مر جاؤ، دیٹ از اے لائف، وی ہیو ٹو ڈائی فار اللہ، لیو فار اللہ اینڈ ڈائی فار اللہ۔ آج میرے سامنے پرنسپل صاحب بھی بیٹھے ہیں، وعدہ کرو آج کہ اللہ آج کے بعد جو ہو گئی ہو گئی، اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، اسی توبہ کے کہ ہم اپنی تمام زندگی ہم علم بھی تمہارے لیے حاصل کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت جو وحی بھیجی ہے وہ علم کے متعلق ہے، جسے علماء حضرات نے اس کی شکل اور بنا دی، اس میں بسم ربے کا پڑھ اللہ کے نام سے، وہ پڑھ یہ نہیں ہے جو علماء حضرات کہہ رہے ہیں، یا آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی بچپن میں یہی سنا کہ جی حضور وہ گارے نور میں تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا وہی لے کے آئے تھا جی کہ پڑھ، حضور نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر بھیجا، اب پڑھ، انہوں نے کہا جی اب بھی نہیں پڑھ سکتا، پھر دوسری دفعہ بھیجا، تیسری دفعہ پھر آپ نے پڑھنے سے کبھی غور کیا کرو آپ آئے کو وہی کوئی کارڈ بورڈ پہ لکھی ہوئی تھی جو جبرائیل لے کے وہ سامنے ایل سی ڈی سی، وہ تو انسپائر ہوتی ہوتی ہے اندر۔ چلو اس کی مثال ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی آپ کہتے ہیں کسی آدمی کو یار اس کی تو آنکھیں ایسی جس کے اس پہ جن کا سایہ ہو گیا یا جن اس میں کر ہے، وہ یقیناً اس میں اس کی پرپاؤ کی تجربہ ہوگا، تو وہ تو وہی ایسے آتی ہے۔ اچھا چلو اس وقت حضور نے پڑھ لیا اس کے کہنے، پھر بعد میں حضور کیوں نہ پڑھ سکے؟ جب آپ کو پڑھنا آ گیا تو بعد میں ساری لائف جو ہے وہ جب کسی کا خط آتا تھا کسی بادشاہ کا، تو وہ جو آپ کے تھے مشیر صفی وہ سارا جب بھائی پڑھ کے سنا کیا لکھا ہے، پھر ان کو کہتے تو لکھو میری طرف سے یہ کہیے، پھر نیچے آپ کی جواب کی وہ لگا دیتے۔ وہ پڑھ یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم اور ٹیکنالوجی حاصل کرو، پڑھو، جس طرح کرو بچوں پڑھو، ماں باپ کہتے ہو بچوں پڑھ لو، استاد کہتے ہو بچوں پڑھ لو، پڑھ لو کیا مطلب کہ علم حاصل کر لو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ پہلی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی، سائنس اور ٹیکنالوجی، علم حاصل کرو جو اللہ نے پیدا کیا، علم کو ہمیں تو کیا ہی ہے، علم کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک ایگزامپل دے دی، مثال کہ میں نے ان کی چھوٹی سی پھٹکری سے انسان نہیں بنا دی، دیٹ از ایگزامپل فار یو ٹو ریسرچ، کہ چھوٹی سے خون کی کیسے انسان بنتا ہے، سوچ فکر سائنس ٹیکنالوجی آگے اس کی، جیسے پہلے ہم نے جو 9 سال جو رنجی بات میں آگے پڑھے تھے تو وہ کو مشق ہوتی تھی، اس سے پہلے ایک ایگزامپل ہوتی تھی، مثال، وہ جو تھا اگر نفع نقصان کے سوال آتے تھے تو 1-2 مثالوں پہلے دیتا، پھر وہ 30 35 40 جتنے پیسے ہوتے تھے وہ اسی پیٹرن پہ ہوتے تھے، وہ سارے آ جاتے، جب آدمی کو وہ مثال کی سمجھ آ جاتی تھی تو وہ ساری مشق اس کو آ جاتی تھی، باقی تو مشق میں عبارت ہی بدلی ہوتی تھی کہ اتنی بکریاں تھیں، اتنی اس نے بیچ دی، اتنے
उसने सेब को ली के इतने में जाके बेचो, इसको कितना हुआ, इतनी उसने गाय बलि दी, इतनी, वो तो सारी अबारात जो है वो मुख्तलिफ है, फार्मूला वही है। तो आज अल्लाह से वादा कर लो, प्रिंसिपल साहब भी बैठे कि अल्लाह जो हो गई सो हो गई, अब हमने इल्म भी तेरे लिए हासिल करना, इंतहा कर लो। अगर मेरे जैसा एक दिलाती बच्चा 50 मुल्क घूमा, इतनी यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दिए, मेरी आधी ज़िंदगी जहाज़ों में गुजरी है, एक मुल्क से जहाज़ में बैठ कर सोना भी 18 घंटे की कनेक्टेड फ्लाइट, वहाँ उतरे, नहाए जाए, यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए। तो वो जगह पे मैं गया हूँ, अल्लाह ताला ने कहा जहाँ सूरज वो रात को भी रहता है। नॉर्वे किसी भी बड़े एक जजीरा है, नॉर्वे का ही है, तो वहाँ जाए तो वहाँ 24 आवर मतलब सूर्य गुरूब नहीं होता, ना सर्दियों में ना गर्मियों में। सर्दियों में तो नजर नहीं आता, गर्मियों में तो ओशनों में भी नजर आता है। मैं खुद देख के आया हूँ, लोग उधर बीच समंदर पे क्योंकि आगे साफ होता है ना, पहाड़ वगैरह वहाँ पे नजर नहीं आता। तो ऐसे सूरज आता है, रात के 11 बज गया, 12 बज गया, ऐसे ही समुद्र से 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, सुबह के 4 बज गया, 5 सूर्य गुरूब नहीं होता। लेकिन जब उस जजीरे पे चल जाए तो वहाँ तो आपको उसका नज़ारा ही और, तो वहाँ देखो टेक्नोलॉजी जो आपको हासिल, हम मुसलमानों को हासिल करनी चाहिए। वो एक बाती यहाँ वहाँ, मैं वहाँ गया, वो पहाड़ों के एन बीच में थे, दामन में, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो सूर्य की रोशनी नहीं आती थी उधर, न गर्मियों में न सर्दियों में। तो आप जैसे साइंसदानों ने बहुत बड़े बड़े रिफ्लेक्टर लगा के ना पहाड़ों पे सूर्य की रोशनी लेके उसको रिफ्लेक्ट किया। तो नीचे आप जाके देखें, आपको ऐसे लग रहा है कि सूर्य चमक रहा है और धूप है उसकी, मेरा साया है, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती थी वहाँ जनाब धूप आपको नजर आती। ये है अल्लाह ताला के वाइसराय का कमाल, जिसके लिए उसने भेजा। उसने कहा मेरी दुनिया को, मेरी ज़मीन को संवारो, इसको कहते हैं संवारना, और उस पर फसाद पैदा ना करो, जो जिसमें हम सब लगे हुए कि पार्क गया हो गला करता, स्कूल गया हो गला करता, घर जाके भी एक बूट के उतर मारा है, जूता उतर मारा है, वो पहन करके या मार करके बड़ी मिल जाए। मैं घर में मेरी से दूसरे का में जानती है, आप यकीन है मैं अपने बर्तन को धोते रहता, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे नाश्ता बनाओ, मुझे रोटी तक बनानी आती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जब रोटी बनानी, एक रोटी बना के आप ये करो, मैं सुबह खा लूँ, शाम को खा लूँ, रात को खा लूँ, सालन पड़ा है फ्रिज में और गर्म करने सुबह मैं जब उठा तो मैं नाश्ता करूँ, मेरी सिस्टर करूँ, भाई क्या नाश्ता करूँ, मैं देखा और रात की रोटी बासी भी करूँ, तो वो मैंने कहा कोई साधन नहीं, तो मैं नमक नहीं इस्तेमाल करता, थोड़ा सा मुझे दिया था खा लिया, कहते आपकी पड़ी हो दावत के लिए, तो वो मेट्रो भी करता है, चाय बनाई, वो बासी रोटी ठंडी था, इतना मज़ा आया नाश्ते में, मेरा ख्याल ऐसे 7 स्टार होटल में भी मैंने इतने होटलों में रहा हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा बड़े होटल 7 स्टार होते, वो 5 मरबे में था, वहाँ ग्लाइडर, जिम्स, स्विमिंग, घोड़सवारी, ऑल एक्टिविटीज आर देयर, और उसका एक दिन का किराया $10,000। और देखो अल्लाह ताला ने अपने हाथ से, वो भी काले रंग का बंदा उठाया, वहाँ 7 स्टार में पहुँचा, और वहाँ जो लोग रहते हैं वो इतने बड़े बड़े मिलियनेयर, ये फुटबॉलर, गोल्ड का काम करने वाले बड़े बड़े, वो मेरी तरफ देखते थे ये काला कहाँ से आ गया। और नाम म्यूनिख,
म्यूनिख में जहाँ मैं रहता था वो भी बड़े बड़े लोग थे रहते, 8-8 कनाल का घर, आप सोच नहीं सकते, स्विमिंग पूल अंदर बने हुए। और ये वो वहाँ मार्केट में जाना तो औरतों ने मुझे ऐसे देखा कि ये काला कहाँ से आ गया, मुझे पता नहीं, अल्लाह जिसको चाहे मर्जी ले जाए, राइट। मैं जब यहाँ तो अब इंटरेस्टिंग बात पता नहीं पीछे मेरी पड़ोस में एक उसको इनकम टैक्स वो 6 इलेक्शन थी, छोटे घर बनाए थे, 8 कनाल के घर को, फिर लॉन्ग के फिर 15 लाख का काम था। मैं गया तो मैं अपने गार्डन में गया तो वो औरत और उसका कुत्ता वो अंदर चले गए। शी वॉज गार्डनिंग कर रही थी, वो उठ के अंदर चले गई। मुझे देखकर कुत्ता भी भौंकने लग पड़ा। पंजाबी जन कहते स्वाद आया नहीं आया, मैंने कहा कोई बात नहीं। वही औरत वही कुत्ता मेरा इंतजार करते हो। जब मैंने जाना उस डोर खोलना, कुत्ते ने मेरे बगल की रोज मुंह चूम ले। वो बड़े क्या कहते हैं ट्रेन और ऐसे होते, यकीन जाने लगा। वो 8-10 घर थे, 5-4 नीचे 5 ऊपर से, वहाँ भी अमीर लोग ऐसे। मैंने उसमें कहा यार उसी इंसान हो, एक दूसरे का सोच मदद। मैंने एक दिन दिखा उन सबको, उनके घरों में फेंका, ये शाम को आज बात की मेरे लॉन में आता हो, पहले लोग एक दूसरे से वही कागज चलो भी सके, वही कागज दे के गया इन्विटेशन, मैंने भी बुलाया, हमारा मतलब भी बुलाया, साधु भी लाया, और ये उधर आ गया मेरे नाम में। मैंने वो अपनाया था पाकिस्तानी के रेस्टोरेंट बारबेक्यू के लिए रेस्टोरेंट। मैंने ये चावल बनाने ना, ये हमारे जो कर्नल बासमती ये वो जो सबसे राइस आला हमारे पाकिस्तान में है, हम इसको ही ले लें, हमारे से खरीद कर इंडिया एक्सपोर्ट करता हूँ, $1 कमाता हूँ। वो मैंने पकाने ना तो मैंने सबको प्लेट दे, और उसकी दुफ्ट खुशबू जब मैं करती थी तमाम की तरफ जल जाती थी, उधर चावल बनाना। और उनको पता था कि आने जैसे हमारे नहीं इर्द मारने में देते सीधे से इंसान। जब मैं वहाँ से आया तो रो रहे थे वो सभी रो रहे थे कि एक इंसान यार जिसने हमें इंसानियत सिखा दी वो हमसे दूर जा रहा है, ये हम पर फर्ज है। मैंने वहाँ ये कहते हैं मुसलमान करना, मुसलमान तो ऐसी नहीं जो इनकी करना, लेकिन मैंने बहुत लोगों के कंसेप्ट क्लियर है, हजारों में सिर्फ उनका ये कंसेप्ट क्लियर किया कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक पैगंबर थे जैसे दूसरे, बाकी अल्लाह ताला के ऐसे खालो को मालिक वही है, वही सिर्फ यानी आपका रुख जो है, डायरेक्शन जो है वो अल्लाह ताला की तरफ हो जाए। ये बंदगी आप अल्लाह ताला को 24 घंटे अपने साथ पाए। वो कभी मैं भी थक गया हूँ यहाँ आप तो बैठे मैं खड़ा हूँ, मैं कभी बताऊँगा फिर मौका मुझे मिला कि वो कैसे आप अल्लाह ताला को अपने 24 घंटे साथ पा सकते हैं। फिर आप देखें कि आप में क्या सिफात पैदा होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मैंने इंसान को अपनी सिफात में पैदा किया। जब आप 24 घंटे के क्राइटेरिया पे अल्लाह को याद करने पे आ जाते हैं, अल्लाह का रंग आप पर वार आ जाता है। तो अल्लाह को लेकिन मेरे से बढ़कर किसी का रंग कहा तो तुझी को उनको आप आगे को वो कहते हैं मेरे ना ताल्लुक रख, अल्लाह कहते मेरे को इधर बात ना हो, तू जो कहिया हो जाएगा, डोंट वरी। वो जिस शख्सियत की तालीमात पे मैं डॉक्टरेट की मैं बताया पाकिस्तान का, वो कहते हैं कि अल्लाह को आप शीता करने के लिए कौन सा दुआ करें, अल्लाह को दुआ में भी देखा जब अल्लाह ताला ने तमाम हमारी दीनें जो रोज़े क़यामत तक में आना है दुनिया में तालीम ताला की, अल्लाह ताला ने सबको कटी करके पूछा कि मैं तुम्हारा रब नहीं, हमने देख के अल्लाह
अल्लाह ताला को खुली आंखों से इकरार किया कि हाँ आप अल्लाह का। तो यहाँ आके हम भूल भुलैयों में फंस कर तब अल्लाह ताला को फिर पैगम्बर भेजने पड़े कि इनको कहो बेवकूफ़ों, मैं ही तुम्हारा ताल्लुक मालूम हूँ, मेरी तरफ रजू रखो, मेरी तरफ मेरे से मांगो, मैं ही अता करने वाला हूँ, मैं ही मांगो। तब अल्लाह ताला ने पैगम्बर भेजे। अब जब आप वो कहते थे कि कमाल ये है कि अल्लाह के दिल में जा बैठो, ये कमाल है। अल्लाह तो तुमसे अदास हो तुम्हारी वजह से कि आज सुबह का अशफाक का ना कोई टेलीफोन आया ना कोई मैसेज आया, पता नहीं कि खूब कढ़न लग गया जिस वक्त पंजाबी कैसे अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ वजह तो उदास होवे